Thank you so much, Anjana. This is our ritual. Whenever we do any program in Vigyan Bharati and Shakti, we do our Vigyan Bharati, Vigyan Prarthana. So because we all will repeat in our minds. I will be speaking. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnad Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा वृदः कस्य स्विधनम् विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यायां मृत्युं धृत्वा विद्यायां मृत्युमुष्णुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत् ॐ शान्तिः 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 Over to you, Anjana. बहुत बहुत धन्यवाद रूबी मैम. Indraprastha Shakti Delhi Prant, under the aegis of an ongoing consultation of Shakti, which is a national movement for women empowerment, is organizing its fifth talk, COVID Samvad, on resurgence of COVID-19 in India. For this, Indraprastha Shakti invites you all on open discussion, which is more of an interaction on topics like mental health during pandemic by Dr. Dimpy Mahanta ma'am, who is the founding head and professor at Department of Psychology, Cotton University, and to solve all our COVID-related queries and medical advice from Dr. Uma Kumar ma'am, President Indraprastha Shakti Delhi Prant and HOD Rheumatology Department, AIMS, New Delhi. The COVID Samvad is an initiative of Indraprastha Shakti under the guiding force of Dr. Uma Kumar ma'am only, to spread maximum awareness and ruling out all the queries, confusion and fear which is surmounting these days everywhere. Recently, we had a direct conversation with more than small groups of about 25 people from Bihar to solve all their queries and give away medical advice. This is just an initiative, and we are committed to reach out as many as people from different parts of the country to serve the humanity and our nation as a whole. It is a saying that it is not whether you get knocked down, it is whether you get up. So difficult situations in life are the actual test of our patience, perseverance, compassion, and inner strength. We should all stay united in these times with a positive approach so that we can fight against this evil which is called COVID-19 and should maintain our inner peace, because by doing so, we can help those who are in dire need of it and all our near and dear ones. Because the person who has confidence in himself gains the confidence of others. To keep this in mind and make us further aware, I would now like to introduce our first speaker, Dr. Dimpy Mahanta ma'am, who is the founding head and assistant professor in the Department of Psychology, Cotton University. Dr. Dimpy Mahanta earned her master's degree in psychology from Delhi University, qualified UGC NET, followed by a doctorate for her work on occupational stress and quality of work life in 2009. She is the recipient of the prestigious Mehta Memorial Award for student exhibiting consistent scholarship in psychology in 2001, and also a recipient of Delhi University Postgraduate Scholarship. Dr. Dimpy has authored chapters on several reputed books in psychology and was the course coordinator and content writer
for the organizational psychology paper for post-graduation under the e-postgraduate Pathshala mega project of UGC and MHRD. Her research papers have been widely published and she has presented her work both national and internationally and has been highly applauded. She is a life member of European Academy of Occupational Health Psychology based in Nottingham, UK, and is an executive committee member of the prestigious Indian Academy of Health Psychology. Dr. Mahanta started her teaching career in Delhi University at the age of 22. After a teaching experience in Delhi University for over a decade as a permanent faculty, she had shifted her base to Guwahati in 2015 and had been instrumental in establishing the postgraduate Department of Psychology as the founding head of the department. Dr. Dimpy is a champion in the field of promoting psychological well-being and managing stress and has been counseling and guiding students and public for over 15 years. She is also a visiting faculty and resource person in the prestigious Northeastern Police Academy, Meghalaya, and Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Meghalaya. Besides this, she is also an expert member empaneled in the selection boards of the renowned PSUs of the country. Actively associated with print, radio, and electronic media, Dr. Mahanta regularly authors in major news dailies like the Education Times, Times of India, Assam Tribune, and magazines to create and sensitize the masses on important social and psychological issues. She is also a consultant knowledge partner with a consulting firm based in Noida and is involved with workplace well-being projects. She has been spreading mental health awareness in the Northeast region under the brainchild Northeast Indian Association of Applied Psychology, which is gradually evolving. Her work with the frontline workers in the Kaziranga National Park on stress, well-being, and motivation earned fruits when her expert recommendations were incorporated in the Assam State Finance Budget 2020. An author, singer, English news reader with All India Radio Prasar Bharati Delhi, an avid traveler are only a few facets of her towering personality. Besides being a great mother and a doting wife to her bureaucrat husband, she is said to be the wind beneath his wings, uh, taking up the entire family responsibilities on her shoulders. Dr. Mahanta has been selected to be a part and parcel of the prestigious IAHP COVID-19 National Task Force and has been providing free counseling and psychological assistance to the public during the present crisis. I now invite Dr. Mahanta to, guide us and bring forth the light so that we can, uh, you know, uh, ignite our minds and fight with this stressful situation. Over to you, ma'am. A very good afternoon to one and all present over here. Thank you so much, Anjana ji, for such a elaborate introduction. I hope I do justice to it. So I'm really happy to be amongst such knowledgeable people around here today. I respected Uma ma'am. I'm a little nervous in front of her because she is an institution in herself, and respected Ruby ma'am and everybody who is present out here. In fact, अभी का जो time है, it's about pandemic, as we all have seen for last more than a year now. Since it had started somewhere around March 24th when the lockdown was announced. तब से लेके अब तक, we have seen how the common public, whether you talk about homemakers, you talk about school or college or university students, you talk about little children, you talk about elderly population, working women, working mothers, you talk about migrant workers. हर एक क्षेत्र में हमने देखा है how this present pandemic has affected all sections of people, cross-sectionally, in our country. And iski wajah se we have seen how the stress which has resulted because of the present pandemic
has impacted them at various levels, right? And why is, whenever we are talking about stress, it's mainly because of the disturbance of the body's homeostasis, जो body balance होता है, जब भी whenever it is disturbed, that's when we experience something which we call as stress. अभी इस stress के वजह से there are various effects of stress, various symptoms of stress that we notice. Whether you talk about the, physiological symptoms, you talk about psychological symptoms, or you talk about the behavioral symptoms. And why is the stress being caused? Mainly because of 4 reasons. The first one is fear. जब भी हम fear की बात करते हैं, the fear is basically because of 2 reasons. In this particular situation, let me tell you. One is because of the fear of unknown, because we really do not know what is going to happen next, right? The second thing is because of the fear of uncertainty. There's a lot of uncertainty around. I hope you all will agree with me. Because of that, there is somewhere deep down, there is a fear within each one of us that what is going to happen, how are we going to tackle it? And शुरुआत में अगर if you just go back to 2020, you will remember how there was so much of rumors which were being spread through WhatsApps, through news source which are unreliable in nature. है ना? उस दौरान people were suffering from extreme form of anxiety, extreme form of panic because of this fear, because they did not have reliable information in their hands. Right? This is one fear. The second we have seen of late, which is much more in the second wave, is bereavement. There's something which is, we have seen loss of lives. People are dying like flies. That people are dying like anything. In this present last 1 month, I have, in fact, lost close friends. कह लीजिए आप colleagues कह लीजिए. Delhi University में मैंने almost 10 years, more than that, student life भी Delhi University में ही था. So every now and then I keep getting messages that we have lost this colleague, that colleague, and it really, somewhere deep down, it does affect. We're after all human beings with flesh and blood. It has to affect. The third thing that is isolation. Abhi, because of the physical isolation, we all are, during this lockdown, we all are in our respective homes. We're not going to our workplaces, because if you talk about going to workplace, or you talk about school children going to school, it's not just about gaining knowledge. It's not just about imparting knowledge to students. There's a lot of socialization jo hota hai in the workplace, and that thing is missing right now because of the lockdown. And anyways, it has to be done because of this present scenario, right? So isolation is one reason why people are experiencing a lot of stress. And chautha jo hai is loss of income. Loss of income is again another reason, which is causing a lot of stress amongst the people. So in this scenario, we have seen that it has triggered various mental health issues. Whether you talk about anxiety, keh lijiye, okay, you talk about depression, you talk about panic attacks, okay, you talk about even people have gone to the extent of suicides, those who haven't been able to control their emotions. And depression and suicide ka bahut anokha relation hai, they are directly related. And most of the time we have seen that people who are depressed, who are unable to manage their depression in long term, they are the ones who actually, many times they go to the extent of committing suicides, right? And besides that, I would also like to lay emphasis upon the fact that in such a scenario where there's so much of uncertainty, it is but obvious to experience a bit of sadness, anxiety, very natural. In fact, we often say, whenever I get calls from my students or people in general, I would always tell them it is okay to not feel okay. It's not like you have to feel happy all the time. It is okay to not feel okay. First and foremost, you need to accept that this is a scenario which is happening for the first time. We've never seen in last so many years. At least I have not seen since the time I was born. This is the first time. So in such a situation, I tell them it is okay to not feel okay. The second thing I tell them is that you are not alone. We all are in the same situation. We all are experiencing the same, more or less the same emotions. Intensity vary kar sakta hai, lekin emotions are more or less the same that we are experiencing. And the third thing that I tell them is that together we will be able to,
go through this particular, phase of life, and there is light at the end of the tunnel. As Ma'am Uma also has said, the sense of hope is very, very important, which keeps us going when the going gets tough. Somewhere we need to instill that hope. I understand it is not going to be easy when you see people dying around, but somewhere we need to develop that inner resilience, because bahar ke isme we do not have any control. Outside scenario is like, if you think of the serenity prayer, I quite often tell people to practice that, what we read in serenity prayer, that God grant me the serenity to accept things that we cannot change. Accept things that we cannot change. Here, what you cannot change is the deaths that are happening around. We don't have much control over that. And as Ruby ji also had said, most of the time, because of the lack of knowledge, because of lack of awareness also, people don't go to the medical, hospitals, you say, or take medical help. And when they reach hospital, then it gets very late. They're already infected. Their lungs get infected. I would like to tell about my own family. In fact, my in-laws, I have been repeatedly telling them to go and get their health checkup done properly. RT-PCR done. They were not willing. No, it's a normal cough and cold. They kept on ignoring. Till the time a situation had come that my husband literally had to, tell them, now you have to go, otherwise I'm not talking. And then when they went and did their RT-PCR, it was all positive, COVID positive. And then they had infection in both the lungs. So then they were in ventilation. Now, thankfully, they are fine now. Their condition is stable. So the delay is one of the reasons, for such things to happen. So that is very, very important, which we need to understand. And you need to also remember that we have a choice to change the things that we can. The Serenity Prayer says that God give me the strength to accept the things that we cannot change, okay? The courage to change the things that we can, and the wisdom to know the difference. So when you accept the thing that you cannot change, then it becomes easier. The healing starts right there. The difficulty in the healing process is because we go to an entire state of denial. We say, no, ye nahi hai, it's okay, everything is fine. That is why healing is difficult. The moment you accept that, okay, fine, this is something which has happened, okay, let me accept the reality, that's when the healing process starts. Okay, that is one thing that we need to remember. And another thing that I would like to say here is that it is important to take certain steps from your own level, day-to-day basis. You need to carry out certain steps in order to overcome this present crisis. Now, what are they? First is that, as Ma'am Uma also had said, what we do, we are excessively using social media because we have so much of time in our hands. All the time, binge streaming. Binge streaming is like, you look for the news channel. It's important to somewhere limit it. Limit it to at least once a day, right? Rather than going over and over and over again, okay, listening to the number of death cases all the time, that somewhere deep down, it does affect your psyche to a great extent. Second thing, which is very important and which you need to understand, is that we need to also limit the usage of social media. Okay? The third is you need to focus on the present. Extremely important to focus on the present. Being mindful of the present. That's where somewhere I feel that mindfulness meditation, agar hum practice karte hain on a daily basis, even if it is for 5 to 10 minutes, it can do wonders. Right? Having a balanced diet, okay, that will in fact improve your immunity. That is also a very important point that we all need to remember. Okay. Another thing is you need to carry out physical activity. It can be exercising. It can be anything for that matter. It can be, you can just go to any YouTube video or where there is a lot of yoga and exercises that are, available. So that can also help to a great extent. And there is in fact, World Health Organization ke mutabik, 30 minutes of daily exercises, at least 5 days a week, is more than enough. Because when we exercise, there are hormones which are released. Okay, they're happy hormones, endorphins, serotonin, and they actually help in alleviating the depression and anxiety. So that's why, it is important that we exercise.
Another thing that we understand is that since we are working from home, I'm also working from home, delivering online lectures. It's been many months now. So it is important to take frequent breaks in between. We don't have to be sitting at the same position for a long duration of time. So we need to take frequent breaks in between, okay? Another thing is that we need to, what do you call it? You need to talk to people. You need to connect with people. It is important to stay because it is just physical distancing. Socially and emotionally, we ought to be connected to people. Okay, that is very important because after all, we all are social beings. So staying connected with our near and dear ones, and whenever we are connected to them, let us try to deviate our topics of discussion. Let it not always center around Corona and COVID all the time. Let us also try to deviate and talk about something different, not related to COVID, right? That is also going to help. And also besides that, let us practice certain values, human values, whether you talk about compassion, our gratitude therapy ek hai, where we count our blessings rather than focusing on the deficiency. This is what is I don't have, this is what is lacking, this is all the time focusing upon the deficiency. Why can't we change the perspective to thinking about what we have, what we are blessed with? This is a very important thing. That's why I tell most of the time to people that you need to maintain something which we call as gratitude journal. When you do journaling, many a times it happens that your entire perspective changes from deficiency to abundance. So gratitude therapy really works, and that is something which I always often, tell people to practice. And also practicing empathy. We need to practice empathy amongst our, people, because that is what is going to connect all of us together. Whether you talk about family, whether you talk about friends, we need to be the beacon of light for everyone, beacon of hope for everyone. So that is something which I feel it's extremely important. Do listen to music. This is obvious. Try to practice certain hobbies and, try to give time to things that you really like doing. So that ways it is going to keep you more balanced in such a scenario that we are encountering today. And also, whenever you are receiving any information, try to receive that from reliable sources. Many a times, because of unreliable, sources, that often leads to a lot of panic amongst our young masses. So it is very important that we take information from reliable sources and also limit the intake of information to at least once a day. It should not be like 24/7 you are playing and listening to, you are switching on the different channels and listening to news, which actually bogs you down. It is your responsibility, it's my responsibility, it's our responsibility, in fact, to take care of our own mental health, our own psychological health, our own emotional health. We need to practice, this is the time to practice spirituality. This is the time to build up your inner resilience. Because outside you do not have control. You need to bring out some discipline within you. Discipline in the form of making a routine for yourself, prioritizing your task, and focusing on the task that you can actually carry out. That way, your entire perspective, your entire this thing will change from all that negative to something which is positive and productive. Right? This I really feel it is very, very important. And many a times I get calls that, ma'am, we are not getting sleep. We are experiencing insomnia, severe insomnia. That's where I feel that it is important that we follow something which I call as sleep hygiene. Make a routine for yourself where there is a set time to wake up in the morning, set time to go off to sleep. Okay, and then prior to going off to sleep, at least 2 hours before that, switch off all electronic gadgets. Why? The reason is because whenever you are looking at the gadgets before sleeping, there is this blue rays that that fall in your eyes, and there is a pigment which is called as melatonin, okay, which is responsible for our circadian rhythms, which control our sleep-wake cycle. Okay, that gets confused because of the rays that fall in your eyes at night. So when it is dark, all dark,
and when you are relaxed, that's when, you know, you start falling asleep. That helps you in falling asleep. Okay, so it is important to keep your gadgets off 2 hours before sleeping. Okay, follow a daily routine for yourself, prioritize your list, and all of that. And also practicing meditation and breathing exercises, very, very important. Deep breathing. Why? Because whenever we are breathing, we are practicing deep breathing, there are certain centers in our brain which is called as reticular activating system in our brain that gets activated. When it gets activated, the neurons, automatically they send the signal to the neurons and they get relaxed. So that is why it is very, very important to practice deep breathing, okay, to meditate and to, carry out physical activities, yoga, and all of that, which is very, very important in, in this present scenario. I feel that if we can take out time, if you can take out time for all these activities, if we can remember, all the things that I have mentioned right now, and practice that in a day-to-day basis, I'm very sure that we will be able to maintain our mental inner stability, mental sanity at this hour of uncertainty, where uncertainty is looming all around. It is important to keep your inner self, resilient. And to build up that resilience, we need to take these steps, which is very important. Okay, that's all I had to say to you before. I did not, as such, it's more of an extempore. So if you have any kind of queries, please feel free to ask me. Yes, Anjana. Thank you so much, ma'am, for your enlightening words. And you expressed about the importance of mindfulness and how the breathing exercises are important, how much to stay in tune and stay connected with our near and dear ones are, it's like medicine for us. And also it is important to whatever we have, we should always count upon the blessings. That is the most important takeaway for all of us, I think. With this, I would like now welcome Dr. Omkar Rai, sir. I think he is with us. He is, we are extremely delighted and we are very happy to have you, sir, here. Dr. Omkar is the director of STPI, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. Sir, we would like to have your blessings. Say a few words before the question answer session. Oh, thank you very much for really recognizing my presence here. In fact, I was in audience and I was actually not knowing about this program. As soon as I looked at the topic and the speakers, I just joined without really being formal or something. So kindly allow me to remain like in audience only. And it's a very good program. I am very sure I heard the entire the discourse and the lecture by both the professors and even others. And I'm very sure that these kind of programs are very necessary in these times when there are a lot of lack of information and people are really shattered because of loss of lives and all. And there is a lot of negativities which have crept into our daily life. And this very lecture was very, very impressive, very, very informative. So I won't take much time. I mean, it was not necessary to bring me here. I was only in audience. Thank you very much for it. Thank you. बहुत Thank you बहुत so much, sir. आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत स्वागत. Thank you very much, ma'am. ओमकार राय Thank you सर so हमारे much. लिए एक परिवार के एक सदस्य ही हैं, तो उनका आशीर्वचन और ब्लेसिंग्स हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है. ये विभा के हमारे नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हम सब आभारी हैं. थैंक यू सो Pleasure is मच. mine. I greatly benefited from. थैंक यू सर. थैंक यू. And believe me, I never wanted to be recognized. I was just in audience. Thank you. सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर. प्लीज स्टे ट्यून सर.
जुड़े रहिएगा सर। Thank you. जी जी, over to you Anjana, please carry on. Thank you so much, sir, for your blessings. Moving on to proceeding further, I would now like to request all the participants, if they have any questions, if they have any queries, and please join us for more of an interaction section, because that will improve all our mindset, and it will really help to all of us in this crisis. Anybody who has question can unmute himself or herself and can ask question directly from Dimpy ma'am. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. See, we can't Anjana, change before that we can call Yes, ma'am. Professor Umar Kumar, and then accordingly we will take questions from Okay. the audience. Audience are requested to write down the questions in their chat box, and accordingly their names will be announced, or they can ask directly also. Since we are meeting on Google Meet, so there are lots of disturbance. If most of us will be unmuted, so we will try to just keep as yeah. Okay, please go ahead, Anjana, please. Okay, ma'am. So moving forward, I would like to request. I would now like to invite Dr. Uma Kumar ma'am, President Indraprastha Shakti and HOD Rheumatology Department in AIIMS, New Delhi. She is a world-renowned specialist, contributing a lot to the society, and also a president awardee. Ma'am needs no introduction because we all know the amount of work ma'am has done and still working and helping in this pandemic situation. Ma'am, we are extremely proud of you, and it is our privilege that we are blessed to have you as our president. It is my pleasure to invite you here, ma'am. Please, ma'am, enlighten us and remove all our doubts and fears about COVID-19. Over to you, ma'am. Thank you, Anjana ji. First of all, I would say सबको मेरी बहुत प्यार भरी नमस्ते. और हम सब एक ही दौर से गुजर रहे हैं. हर तरफ परेशानी तो है, लेकिन होप है, और हम एक बार निकल चुके हैं इस पैंडेमिक लाइक सिचुएशन से, लेकिन दोबारा फिर से ये आई है, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम इससे भी बाहर निकल आएंगे. और फर्स्ट जो वेव थी वो भी हमें कुछ सिखा के गई, लेकिन शायद कुछ कमी रह गई जो ये सेकेंड वेव हमें सिखा के जा रही है. एंड द वेरी important things which are actually being discussed by my predecessor, who had just kind of finished her talk. So those are so important, that physically one can recover, but mentally one keeps suffering, and and despite having everything, one is not able to enjoy the life. तो कोरोना के बारे में अगर हम बात करें, तो this wave is little different. More number of people are getting infected. That is because अगर हमने पहली वेव देखी, उसमें एक पर्सन जो इन्फेक्ट होता था, तो जरूरी नहीं है कि घर के और भी लोग इन्फेक्ट हो जाएं. But this time what we are finding, if one person is infected, everybody at home is getting infected. And in the same family, one is having the mild disease and the other person is having the severe disease. So it's behaving in a very unpredictable manner. And even the manifestations are so diverse. इतने अलग अलग हैं. कहीं पे किसी को सिर्फ लूज मोशंस हो रहे हैं, वो टेस्ट करा रहा है, then it's coming positive. किसी को सिर्फ वॉमिटिंग, नौशिया हो रहा है, थोड़ा सा मसल पेन हो रहा है, किसी को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, then somebody is actually having some kind of extreme weakness and some joint pains. कुछ लोगों का टेस्ट चला जा रहा है, कुछ की स्मेल जा रही है. इसके अलावा जो बच्चे हैं, they are also getting infected in this wave, and lots of children, they are falling sick, which was not happening in the previous wave. वो बच्चों को अफेक्ट नहीं कर रही थी उतना ज्यादा जो अब देखने को मिल रहा है. So
and we all know every day we are talking about mutations, we are talking about variants, and every variant is behaving in a very different way. So we virus is not going to adapt itself and leave us so soon. So what we have to do, we have to change ourselves. And how can we do that? If we हम बात करते हैं होलिस्टिक मेडिसिन की, तो इस चीजों में कुछ एक चीज बातें बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर अगर किसी को कोई सिम्टम है तो एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन जरूरी है। आप उसको इग्नोर ना करें कि अरे जुकाम खांसी तो मुझे हर साल होता था और इस बार भी वही होगा, देखते हैं, एक दो दिन रुक जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पैंडेमिक है, हाई इन्फेक्टिविटी है, डाइवर्स मैनिफेस्टेशंस हैं, तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन बहुत जरूरी है कि ये कोरोना हो सकता है। तो सबसे पहला काम करना है कि सेल्फ आइसोलेशन, जिसको भी सिम्टम आते हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर ले अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से। और अगर घर में फैसिलिटी है कि आप एक रूम तक कन्फाइंड रह सकते हैं, आपका वॉशरूम अलग है, तो नथिंग बेटर देन दिस। बट इन केस यू डोंट हैव इट, तो आप अपने जो एल्डरली है, जो आपके बच्चे हैं, उनके पास तो बिल्कुल ही ना जाएं, दूर दूर रहें और मास्क इमीडिएटली लगाना शुरू कर दें। और इस समय मैं कहूंगी कि N95 मास्क इज गोइंग टू हेल्प, क्योंकि हम पेशेंट मान रहे हैं, एक पेशेंट है और बाकी उसके आसपास जो लोग हैं वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सो वो करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिसिन है, रीपर्पस्ड मेडिसिन है, उनका कोई डेफिनेटिव रोल आज की डेट नहीं दे रहा है, बट क्योंकि उनकी थोड़ी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं जो पाई गई हैं, तो वो 3-4 दवाएं हैं, जैसे वी टॉक अबाउट आइवरमेक्टिन, वी टॉक अबाउट अजिथ्रोमाइसिन, वी टॉक अबाउट डॉक्सीसाइक्लिन, देन वी आर टॉकिंग अबाउट फेविपिराविर। तो इन जो दवाएं, इसमें से जो आइवरमेक्टिन है और डॉक्सीसाइक्लिन है और एजिथ्रोमाइसिन है, ये बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब की जा रही हैं और लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जो दवाएं होते हैं ड्रग इंटरैक्शन होता है, और एक दवा दूसरी दवा के प्रेजेंस में उसके लेवल बढ़ा सकती है, उसके घटा सकती है। उससे क्या होता है कि दवा के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए दिस इज एडवाइजेबल कि जो एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन है उसको अपने आप लेना ना शुरू करके, जो आपके फैमिली फिजिशियन है या टेलीफोनिक कंसल्टेशंस आजकल शुरू हो गए हैं, तो वो लेकर डॉक्टर से बात करके, बिकॉज डॉक्टर इज गोइंग टू आस्क यू कि आपको कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कुछ और परेशानी तो नहीं है, इसके अलावा आप कोई और मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो हाइपरटेंशन की ड्रग ले रहे होते हैं, डायबिटीज की, एपिलेप्सी होती है तो उसकी मेडिसिन ले रहे होते हैं, अस्थमा होता है। तो ये देखते हैं कि इन दवा को देने से उन ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन तो नहीं होगा, एंड देन यू कैन टेक दीज मेडिसिन्स। एंड आई वुड सजेस्ट कि दिस इज important to start them as early as possible, because as the virus load is going to increase, maybe these drugs don't work at that point of time, initial ज़्यादा response अच्छा आए तो वो दवा शुरू करते हैं। Then third thing I would like to tell you that जो बात हो रही है थ्रोम्बोएम्बोलिक एपिसोड की, वो कह रहे हैं ना कि सडनली किसी को MI हो जा रहा, किसी को स्ट्रोक हो रहा है, तो कहीं पे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन की जो बात हो रही है कि इस बीमारी में जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। सो दैट इज बीन ऑब्जर्व्ड, राइट। और उसके लिए ये जरूरी है कि हाइड्रेशन मेंटेन रखें, क्योंकि इस उसमें डायरिया हो रहा है पेशेंट्स को, और फिर हाई ग्रेड फीवर होता है, राइट। तो हाई ग्रेड फीवर से भी डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया से भी डिहाइड्रेशन होता है, एपेटाइट कम हो गई रहती है तो लेते उससे नहीं खा पी पाते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, वॉमिटिंग हो रही है। तो नॉर्मल पर्सन समर्स में, इंडिया में समर चल रहा है, तो उस समय एटलीस्ट 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर इज नीडेड, राइट। तो 60% बॉडी में वाटर है, इसलिए जब आप वाटर इनटेक कम होगा तो डिहाइड्रेट होगा तो हीमो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, यानी कि जो मतलब ब्लड है वो थिक हो जाएगा, तो जो कोआगुलेशन की प्रॉपर्टी है वो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2.5 से 3 लीटर्स वाटर, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, लेते रहें। The fourth important thing here is, as been talked about by Dr. also, that sleep is very important, because what happens,
जो कहते हैं कि देन ऑक्सीजन मेंटेनिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन, राइट। तो उसमें क्या फैक्टर्स हैं, अगर कोई एंशियस होता है, कोई बहुत डरता है, कोई पैनिक वाली स्टेज में है, किसी को नींद नहीं आ रही है, तो आपने और सडनली कोई बड़ा स्ट्रेस हो गया, तो आप देखिए हमारी बीट जाती है, हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो जब भी बॉडी का मेटाबॉलिज्म विल इंक्रीज, देन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, एंड देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम बिकॉज वायरस इज ट्राइंग टू गेट इनटू योर लंग्स, वहां पे जाके इट्स ट्राइंग टू डैमेज योर लंग्स, और वहां फिर जो एयर एक्सचेंज है, ब्लड एयर एक्सचेंज जो इंटरफेस पे हो रही है, वो अफेक्टेड हो जाएगी। तो ऑलरेडी सम काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज इज देयर, एंड देन वी आर आवरसेल्फ इंक्रीजिंग द बॉडीज रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन। तो क्या होगा, सैचुरेशन फॉल करेगा और ज्यादा फॉल करेगा। तो ये चीजें भी बहुत ध्यान में रखने वाली है, बिकॉज आई थिंक whoever is present here would be knowing, definitely is from science background, so they'll understand what it's all these metabolic activities are all about. तो ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा physical activity we say is important. Why? Because when you do some amount of physical activity, the circulation improves, and as has been talked about, that there are lots of good hormones which keep us happy, they are released into the circulation, so you are happy, and then blood is reaching to distant parts of the body, right? So what it's doing, it's taking away the pathogens maybe, and all the waste products which are the byproduct of increased metabolism, so that is being washed off. There are lots of inflammatory markers in the blood body, they are being taken away. So that is why physical activity is important. That doesn't mean कि जब आपको बुखार हो रहा है और आपको एक्टिव डिजीज है तो आप बिल्कुल जिम कर रहे हैं एंड वेरी विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं। बस इसका मतलब सिंपल ये है कि अपना जो अपना खुद का काम है, आप चलना है, वॉक कीजिए, अपने जो नॉर्मल स्पीड पे आप कर सकते हैं, राइट। बेड बाउंड नहीं रहना है कि हमें कोरोना हो गया और हम बिस्तर पर लेट गए। इसके अलावा कुछ चीजें और जो है वो सैचुरेशन की क्वेश्चन होंगे, आई ट्राई टू कवर अप देयर। बहुत डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की सैचुरेशन 94 95 हो गई है तो डोंट वरी, देयर आर सर्टेन वेज ऑफ इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। मैं क्योंकि आई हैड suffered from COVID, now I am negative, I am happy today I am negative, तो मेरे साथ भी ये हुआ कि मेरी सर्कुलेशन, मेरी सैचुरेशन 94 95 पे गई, थोड़ा सा लगा कि फॉल कर रही है, यूजुअली 98 99 रहती है। वो सारे मेजर्स किए कि आप पेट के बल लेट रहे हैं, ये डीप ब्रेथ्स ले रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं, और उन सब चीजों से फिर वो इम्प्रूव हुई। और वो स्टेज नहीं आने देनी कि बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाए उसके बाद, क्योंकि फिर क्या होता है कि देन virus overpowers you when it multiplies in your body and you are just letting it be there, तो परेशानी हो जाती है। इसके अलावा steam inhalation is very very important because you know virus resides in your nasopharynx and in the throat posteriorly, पीछे होता है, इकट्ठा हो जाता है वो। तो क्या होता है कि वो जब आप स्टीम लेते हैं तो स्टीम 10 to 15 मिनट्स जब आप लेते हैं तो वो जो वायरस है जो इकट्ठा होता है उसकी जो उसको कम करने में मदद करता है। ये नहीं कि वो गर्मी से मर जाता है वायरस, नॉट लाइक दैट। व्हेन यू आर टेकिंग स्टीम देन यू आर ओपनिंग योर एयरवेज, आपके जो सिक्रीशंस हैं वो निकल रहे हैं, क्योंकि साइनसेस होते हैं, दे कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ सिक्रीशंस, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन का खतरा होता है जो कि सेकेंड वीक में हो सकता है, दैट इज फर्दर गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम। और इस तरह से तो ये बहुत ही बहुत अब बीटाडीन गार्गल, राइट, यू हैव टू, एंड यू कैन इवन यूज माउथ रिंस, क्योंकि सलाइवा में भी वायरस देखा गया है, तो उससे वायरल लोड यू आर रिड्यूसिंग। ओके, सो ये छोटी छोटी चीजें हैं और इनके बहुत अच्छा इम्पैक्ट है अगर ये शुरू से ही शुरू कर दी जाती हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कोई भी बाहर से अगर आता है, आप अपने वर्क प्लेस से आ रहे हैं, सो यू कैन ऑलवेज टेक स्टीम, यू कैन ऑलवेज डू गार्गल्स, राइट, rinse your mouth before going to sleep or even after coming from your office, so that really helps. And then this time the fever is going on for 8 to 10 days, 12 days, right? So people are getting worried कि आज 8 दिन हो गए बुखार कम नहीं हो रहा है, तो ऐसा देखा जा रहा है। लेकिन सभी वो लोग जिनको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है वो नहीं सकम कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा सीवियर इलनेस हो जा रही है, लेकिन हाँ, फीवर में भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है और तब भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैन गो अप।
तो अगर लंग्स में इन्फेक्शन फैला है तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी कि सैचुरेशन डिप करेगा। इसीलिए फीवर को कंट्रोल में करना जरूरी है। इधर यू टेक एंटीपायरेटिक्स, पैरासिटामोल, या फिर और पैरासिटामोल से ठीक नहीं हो रहा तो दूसरी भी मेडिसिन हैं जो SOS दी जा सकती हैं, रेगुलरली नहीं लेनी चाहिए। कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, तो वो सब चीजें भी फिर जरूरी हो जाती हैं। बाकी आई थिंक 80% पॉपुलेशन इज नॉट रिक्वायरिंग एनी मेडिकल अटेंशन, और वो अपने होम रेमेडीज से और बाकी की जो सारी चीजें चल रही हैं, छोटी मोटी दवाइयाँ, उससे ठीक हो रहे हैं। 15% 15 to 20% पॉपुलेशन इज रिक्वायरिंग सम काइंड ऑफ मेडिकल अटेंशन। लेकिन जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो मुझे लगता है सिर्फ 5% लोगों में है, और उसमें से आप देख रहे हैं डेथ रेट भी बहुत कम है कि अराउंड 1% मोर्टेलिटी है। बट 1% मोर्टेलिटी भी अगर अपनी पॉपुलेशन को हम देखें इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज, right? So it can be further reduced with small measures and by educating people. और दूसरी चीज ये है कि मास्क का इस्तेमाल जरूर करना है, घर में पेशेंट भी यूज करे, और पेशेंट जो है आइसोलेट जब करता है तो कोशिश करें कि वेंटिलेटेड रूम हो, एयर सर्कुलेशन ज्यादा हो रही हो, बिकॉज दिस इज एयरबॉर्न डिजीज नाउ। तो अगर एयर सर्कुलेशन होगी तो वायरस वहां घूमता नहीं रहेगा हवा में। एसी का इस्तेमाल ना करे तो अच्छा है, बिकॉज एसी में क्या होता है, the air which is in the room only circulates, there's no exchange of air from outside। तो वो है। और जब भी आपके घर में एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो एग्जॉस्ट ऑन करके रख सकते हैं। वॉशरूम अलग हो तो इट्स ऑलवेज बेटर, एंड देन व्हेन यू आर फ्लशिंग then you can always kind of close the lid and then flush, and then because what happens कि वो जो aerosol generate होता है and that can actually through your exhaust can come out and infect others। आपने देखा होगा बिल्डिंग में लोग कांटेक्ट में नहीं है फिर भी ये सारे फ्लोर्स पे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं कोविड से। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं जिनको लेके काफी हद तक बच सकते हैं, या डिजीज होता है तो बहुत माइल्ड हो सकता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन जरूर कराना है। मैं देखती हूँ अगर वैक्सीनेशन पे क्वेश्चन होंगे ऑडियंस आप लोगों में से किसी के, तो मैं वहां बताने की कोशिश करूंगी, या फिर बाद में towards the end I'll talk about practical tips about vaccination also। Thank you। Thank you so much, dear ma'am. I think most of us queries, doubts must have been cleared by now. There are a few questions in the chat box. Ma'am, with your permission, can I take up? Yes, yes, yes. Now discussion is for open discussion is on। Okay, so you may raise your hand और questions ले लेंगे। बाकी अंजना कुछ questions हमारे chat box में आए हैं। Yes, ma'am. Ma'am, Tarun Pandey is saying that today is his 6th day and his saturation is 99, temperature is 97.2, but he thinks that his lung may be infected in coming days. So what should he do? And he is in home isolation right now. Look, he needs to be in home isolation, right? At least for 2 weeks. After that, and during this period, he needs to take care of all those things which I have narrated। अभी तो बुखार भी नहीं है, सैचुरेशन भी नॉर्मल है, तो उनको बहुत चिंता नहीं करनी है, लेकिन एक हाइड्रेशन मेंटेन रखना है। He has to take lots of fluids in various forms, maybe including water, milk, and fruit juices and all। Then he needs to have good diet, and diet must contain high protein, right? Because when we are through the illness, there's kind of hypercatabolic state in the body, and because of that lots of protein catabolism happens। So what is that going to lead to? Because he'll recover out of COVID, but subsequently he will have lots of weakness, pain, letharginess, all those kinds of stuff, when there is the protein catabolizes from our muscles are the main source, I would say, of fat and as well as protein। So one has to be very very careful। So he needs to maintain his diet, and then he needs to monitor his saturation regularly, maybe 4 times a day। He needs to keep watch on his pulse, his blood pressure, and that's it। And he does not require any other medicine currently, and if he develops any symptoms he needs to contact to the medical professional, and he should not come in contact with
मुझे लगता है जो अभी हमारा डिम्पी जी का जो अभी पहला उद्बोधन था, और अभी 97 है तो फीवर तो है नहीं ना मैम, तो वो उद्बोधन को भी सुने और हम सब पॉजिटिव रहे, बहुत बहुत जरूरी है हम सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सुजीत का, है ना? सुजीत, यू मे आस्क डायरेक्टली। सुजीत, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इन द मीन टाइम मैम, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा जो मैं उन सबके तरफ से आपसे पूछती हूँ मैम, कि जैसे हम सब आपको पता ही है, हम लोग कोविड से अभी बाहर उभर के आए हैं। लाइक मेरा मोर देन 22-23 डेज हो गया है, हस्बैंड का भी मोर देन 20 ऐसे डेज हो गए हैं। अब हम अगर सपोज अपने जस्ट नेक्स्ट फैमिली है उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अभी उन्हें वैक्सीन नहीं लगा है बिकॉज दे ऑल वर बिलो 40, तो मतलब कितनी सावधानी बरतनी चाहिए, या अभी ना ही इंटरेक्ट करें बिकॉज वी मे इन्फेक्ट देम? उनको 6 महीने पहले हुआ था, लाइक फर्स्ट वेव में हुआ था, देन सब ठीक हो गए, तो इस बार वो हमारी देखभाल कर सके, बट वी डोंट वांट टू इन्फेक्ट देम। सो ये एक प्रश्न है जो मतलब कॉमन प्रश्न हो सकता है बहुत से लोगों का, कि हम कोविड से निकल आए हैं बट क्या हम उन्हें भी इन्फेक्ट कर सकते हैं? ये नहीं, अगर आप कोविड से आउट हो गए हो, जो कि देखा जा रहा है 2 वीक्स में यूजुअली नॉन इन्फेक्टेड हो जाता है इंडिविजुअल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो कहते ही हैं कि 2 हफ्ते तो आपने वैसे ले लिया आइसोलेशन, उसके बाद 1 वीक तक आप मास्क को इस्तेमाल करें, लेकिन आप घर वालों के साथ उठ बैठ सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लें। लेकिन आज के टाइम में मैं कहूंगी कि थोड़ा सा डिस्टेंस वैसे भी रखें अपने फैमिली के साथ, जितना रख सकते हैं, चाहे 3 फीट हो चाहे 4 फीट हो। बच्चों को जैसे हक करना, बच्चों को बहुत बहुत ज्यादा पास में लेके सोना, या घर में जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है उनके बहुत पास में जाना बैठना, वो थोड़ा सा अवॉइड कर लें, और घर में भी मास्क का इस्तेमाल करें, जो होममेड मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी, और लेकिन मिले जुले जरूर। आप बिल्कुल ये डर नहीं होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर सामंता ने भी जैसे बताया कि मन में बहुत ज्यादा फियर नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे को फैला देंगे या कोई हमें फैला देगा, बस सिर्फ प्रिकॉशन लेने हैं, और कहाँ पे चूक हो जाएगी और इन्फेक्शन हो जाएगा विच नोबडी कैन प्रिडिक्ट, लेकिन आपने पूरे प्रिकॉशन लेने हैं। आपको सबके मतलब सबके साथ मिल के चलना है, तो अब आप बिल्कुल सबके साथ घुल मिल सकते हैं। बिल्कुल ये ना सोचे कि उनको 6 महीने पहले हुआ था तो अब आपके कांटेक्ट में आएंगे तो उनको भी हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच हमारे बीच मिस्टर सुजीत हैं, जो अभी सेवा भारती में भी काम कर रहे हैं, और हमने खुद अपने एनएसएस के 50 वॉलंटियर्स को मतलब खुद हमने सेवा भारती को बोला है कि उनके कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, एंड सुजीत इज वेरी एक्टिव। सुजीत, आपका कोई प्रश्न है? आपने 2-3 अपने प्रश्न, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। जी मैम, मेरा एक प्रश्न है मैम। पिछले 3-4 दिन से बुखार हो रहा है मैम। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोलो। हाँ मैम, मुझे पिछले 3-4 दिन से बुखार हो रहा है और खांसी जुकाम भी है, तो मैंने तेखंड में जो ASI हॉस्पिटल वहाँ से RT-PCR टेस्ट कराया था, तो आज सुबह रिपोर्ट आया जो नेगेटिव है, और तो मुझे इसमें क्या सेफ्टिफिकेशन बरतना चाहिए? Uma ma'am, you are on mute. Please unmute. आपने जो टेस्ट कराया है वो शायद तीसरे दिन कराया, तो कभी कभी जो RT-PCR टेस्ट है शुरू के दिनों में नेगेटिव आ सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है। इसीलिए कहते हैं कि यूजुअली 4th और 5th डे जो है वो टेस्ट कराने को कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं अगर आपने करा लिया, लेकिन आप ये ना माने कि आपको कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपके सिम्टम हैं, और इस दौरान में कोविड ही हो रहा है लोगों को, कि फीवर है और जुकाम खांसी है, तो अपने आप को आइसोलेट करके रखें, और जो सारी चीजें हमने बताई वो सब लें, और जो कुछ दवाइयां हैं वो ले सकते हैं। बी केयरफुल, जरूरत है तो टेस्ट रिपीट किया जा सकता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव तो आया लेकिन फिर खांसी आनी शुरू हो गई, सांस फूलनी शुरू हो गई, आपने अपना सैचुरेशन देख के रखना है, तो उस केसेस में आपने सुना होगा CT स्कैन भी करा रहे हैं, तो CT स्कैन पे अगर सजेस्टिव आ जाता है कि कोविड है तो भी कोविड की तरह ट्रीट करते हैं, राइट। तो आप ये मान के अभी ना माने कि आपको कोविड नहीं है, जिससे कि आप
आप फ्रीली लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दें। मैं कहूँगी आइसोलेट करें, सारी सावधानियां बरतें जो हमने अभी बताई, और उसके बाद अगर कोई नया सिम्टम, और अपना सैचुरेशन भी चेक करते रहें, पल्स ब्लड प्रेशर भी चेक करते रहें, और जैसे जैसे डिजीज आगे प्रोग्रेस करता है, ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर परेशानी होती है तो टेस्ट जो है रिपीट किया जा सकता है, और या जो अदर रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कराए जा सकते हैं, लेकिन इग्नोर ना करें। ये बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, लोग सोच रहे हैं हमें कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, और सडनली ड्रॉप हो रहे हैं। मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि ये जो यंग पॉपुलेशन है मैम, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट भी इसलिए हो रही है। उसका एक रीजन हो सकता है पैनिक, और दूसरा ये जो अपने पेरेंट्स या किसी ना किसी को लेके उन्हें जाना होता ही है, और अपना इग्नोरेंस हो जाता है, यंग बॉडी होती है। और सबके लिए ही, ऑडियंस के लिए ही ये है मैम कि हमारा ही एक कलीग जिसके लिए वो बहुत अभी, बट ही इज जस्ट फॉर 35 ईयर्स ओल्ड, और असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, और 14th डे पे उससे थोड़ी शिवरिंग हुई एंड ही गॉट एडमिटेड, माइल्ड फीवर था, पीसीएम वगैरह लेता रहा। ये सभी के लिए है, इंक्लूडिंग सुजीत और जो भी वॉलंटियर्स जो जुड़े हुए हैं मैम, क्योंकि ये वन हैंड एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। एंड जब वो उसका आया, टिल देन वो हॉस्पिटल नहीं गया था, उसमें पता लगा कि पूरा उसका लंग्स 95% उसका, और पिछले 15-20 शायद डेज से वो हॉस्पिटल में ही है, और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, कभी प्लाज्मा, कभी कोई इंजेक्शन, कभी कुछ कर रहे हैं। तो भगवान ना करे कोई भी, यही हमारा मोटो भी है मैम, अंडर योर गाइडेंस, कि जैसे हमारी डॉक्टर डिम्पी बोल रही है, हम लोग को पॉजिटिव रहना है मैम, आप पॉजिटिविटी हमें देती रहती है, तो हमें जितना पॉसिबल हो पॉजिटिव रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सुजीत आप बाकियों को भी ये बात बताएंगे। रूबी जी, आपके साथ एक क्वेश्चन मैं यहाँ और ऐड करना चाहूंगी जो लंग इन्फेक्शन का है। एक बहुत ही सीरियसली पेशेंट है, सीवियर इन्फेक्टेड, उनको डॉक्टर अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है और कहा है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता है। उनकी मदर का लंग 95% उनका बोला है कि अब आपका फंक्शन नहीं कर रहा है, अब जो होगा घर में होगा। तो आज वो अभी जुड़ने वाले थे, किसी कारणवश वो लोग नहीं जुड़े हैं, दिल्ली छोड़कर वो लोग मथुरा चले गए हैं और सारा परिवार रिकवर कर गया है, लेकिन मदर जो है वो इस फीलिंग में है कि मेरा 95% लंग्स जो है वो नहीं काम कर रहा है। थोड़ा सा जैसा आपने पॉजिटिविटी के लिए मैसेज दिया था, वो मैं रेगुलर उनकी टच में हूँ, उनको भजन कीर्तन और पॉजिटिव रहने के लिए बताती हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन अभी जैसे तरुण पांडे जी ने भी लिखा है कि जैसे आपने हम लोगों को भी बताया था, जब हम लोग रिकवर हो रहे थे तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि सीटी करा लेना चाहिए। तो आपने बताया कि अगर आपको कफ, कोल्ड या ढर की आवाज, ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप तब जाएं। अगर आपका श्वास बिल्कुल क्लियर है तो हम लोग उस दिन काफी रिलैक्स फील हुए, क्योंकि हम लोग भी सीटी कराने जा रहे थे। तो इस तरह का सुझाव, चूंकि पोस्ट कोविड एक फियर फैक्टर सबके मन में है, और लोगों का देखकर कि हम 10 दिन के बाद रिकवर हो गए, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हमारा लंग जो है वो कुछ पैचेज रहे और इन्फेक्ट हो सकता है कि नहीं, तो इस पर कुछ अगर सुझाव हो तो। देखिए, ये स्टडीज में देखा गया है कि जिनको कोई लंग के सिम्टम्स नहीं थे, कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं थे, यानी कि उनको खांसी भी नहीं थी, उनको ब्रेथलेसनेस भी नहीं थी, लेकिन जो सीटी किया गया था, ये इनिशियल स्टडीज की बात बता रही हूँ, तो उनमें वो पैचेस मिले। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि सब लोगों जिनको भी कोविड होता है उनका सीटी किया जाए तो 80-90% लोगों को लंग्स में प्रॉब्लम आए, लेकिन उसकी 100% रिकवरी हो जाती है। ये वायरल निमोनिया जो होते हैं, वायरल निमोनियाज, ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। अभी तो पेंडेमिक है, लेकिन और भी बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते थे और निमोनियाज होते थे, फिर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकवर कर जाते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी लोगों को सीटी के लिए भागने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो रहा है कि 3 दिन 4 दिन हुए, एक जरा सी खांसी आ गई और जाके सीटी करा लिया। व्हाट इफ कि आपकी सांस ज्यादा फूलने लगी, ज्यादा खांसी आई, फिर आपको 4 दिन बाद सीटी कराना पड़ेगा। उस समय ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा सीटी, क्योंकि उस समय हमें सीटी तभी कराना है जबकि या तो हमें डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी चीज तब कराना है जब हमें कोई थेराप्यूटिक डिसीजन लेना है, मतलब सीटी के बेसिस पे हम कोई मेडिसिन ऐड करेंगे, राइट। या और तभी उससे पहले सीटी नहीं कराना है सब लोगों को। जाके हर आदमी को थोड़ी बहुत खांसी आ रही है तो सीटी कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि जो लोग
जैसे टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो उसकी वजह ये भी है कि हो सकता है कि सैंपल ठीक से कलेक्ट नहीं हो पा रहा, या फिर हो रहा है कि जो उसमें एक लिक्विड में डालते हैं सैंपल जो, और वो बहुत तुरंत एनालाइज होना चाहिए एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम में, उसके बाद वो ना हो पा रहा हो सकता है कि उसकी स्टोरेज प्रॉपर्ली नहीं की जा रही है, राइट। तो या फिर टेक्निकल इश्यूज और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो टेस्ट नेगेटिव आने की बहुत सारी वजह है, राइट। तो इसलिए सिर्फ नेगेटिव टेस्ट पे नहीं जाना है। पेंडेमिक टाइम पे हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना है, सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कोविड अगर आ रहे हैं तो कोविड ही मानना है पहले, डॉक्टर से अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ गई डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और दूसरी चीज ये है कि टेस्ट कराना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, थोड़े सीरियस हो गए, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, तो अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी। हॉस्पिटल्स हो सकते हैं जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो लेने से मना कर दें, क्योंकि उस समय आपके पास रिपोर्ट ही नहीं होगी कोविड की। तो इसलिए पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिपोर्ट है टेस्ट कराना इसलिए जरूरी हो जाता है। तो उमा मैम, डॉक्टर मालती, हाँ यस डॉक्टर दिम्पी प्लीज। Okay, I would just like to, उमा मैम ने जो कहा उसके साथ ही I want to put it, there's something also called as psychosomatic disorder. ना साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर में ये है कि देयर इज नो फिजिकल कॉज टू इट, इट्स कंप्लीटली साइकोलॉजिकल। जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या नेगेटिवली सोचते हैं, देन ऑल्सो यू स्टार्ट फीलिंग हैविंग दोज सिम्टम्स जिसका कोई फिजिकल या फिजियोलॉजिकल बेसिस है नहीं। So इसी में I am absolutely agreeing with what our Ruby ma'am also said and Uma ma'am also said, that it is important that we need to stay relaxed, we need to keep our body relaxed, mind relaxed. नहीं तो कई बार होता है because of psychosomatic disorders की वजह से we end up thinking too much, फिर CT scan करवाने जाते हैं, ये करवाने जाते हैं, वो करना, then we think negatively. So somewhere we need to keep that thing also in our minds, how it can lead to various kinds of psychosomatic disorders. And अगर psychosomatic disorder you experience, then it is very important that we go to a holistic approach, जिसमें we need to first of all, if you are having shortness of breath, okay, something which is again similar to COVID, isn't it? So here you need to give two treatment. One is psychotherapy, and also to treat what all therapies that we do, to come out to solve the problems related to anxiety disorders. We need to go through that also, and at the same time we have to treat the symptoms also. So it is more of a holistic approach. So I just thought let me pitch in and give that thing also into that. Very true, ma'am. हमारे बीच डॉक्टर मालती शर्मा है, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मिरांडा हाउस। उनका कुछ प्रश्न है। डॉक्टर मालती, यू कैन आस्क डायरेक्टली प्लीज। यस श्योर। सो मैम, अभी आप कुछ फ्लैट्स का कह रहे थे कि आप वॉशरूम से एरियोसोल्स निकलते हैं, कैन यू एक्सप्लेन मी अगेन? क्या मैम ये इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके यूरिन से रिलीज होता है या स्टूल से रिलीज होता है वायरस? देखिए, अब ये प्रूफ हो चुका है स्टडीज में कि एक में देखा कि सीवेज प्लांट्स में, ये सीवेज जो प्लांट्स होते हैं ना, वहां पे ये वायरस डिटेक्ट हुआ। और दूसरा ये चीज देखी जा रही है कि जो वायरस का एक्सक्रीशन है वो फीसिस में होता है, और तो उससे क्या होता है। और दूसरा यूरिनरी ब्लैडर में भी देखा गया है वायरस। आपने सुना कुछ लोगों को लोअर एब्डोमिनल पेन हो जाता है, सिस्टाइटिस या यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे होती है इन्फेक्शन, जिसमें कि बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की, बर्निंग होने लगती है यूरिन में। कल्चर कराते हैं तो नेगेटिव आता है, क्योंकि वायरल कल्चर नहीं करते, बैक्टीरियल कल्चर करते हैं तो वो नेगेटिव आ जाता है। तो उसकी वजह से जो वायरस की शेडिंग हो रही है, तो जब आप फ्लश करेंगे तो वो एरोसोल जनरेट होगा, राइट, और वो बाहर जाएगा। एरोसोल मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जो पहले हम बात कर रहे थे कि कोविड भी जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कि आप स्नीज करते हैं, आप कॉफ करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में आता है कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, और वो जो है बहुत हेवी होते हैं, वो सेटल डाउन कर जाते हैं ग्राउंड पे। जो थोड़े छोटे होते हैं वो थोड़े डिस्टेंस तक जा सकते हैं, जो हम इसे निकाल जो 2 गज की दूरी की जो बात हो रही थी कि उतनी दूर तक जाते हैं, लेकिन क्योंकि एयरबॉर्न है तो ये बहुत दूर तक जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप फ्लश करें तो उसका लिड क्लोज करें, उसके बाद फ्लश करें, जिससे कि वो बाहर ना जाए एटमॉस्फेयर में। थैंक यू मैम। पर मैम एक और चीज थी कि ये कंफर्म ही है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे यूरिन या स्टूल से उसका रिलीज होगा ही होगा, या कुछ पेशेंट्स में ही होता है ये वायरस रिलीज?
मुझे तो लगता है कि जो मान लें आपकी बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन किसी को तो हो सकता है ना हो, लेकिन इसकी शेडिंग प्रूवन है कि ये होती है, इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी डायरिया हो रहा है लोगों को Yes. इस वाले सेकंड वेव में। तो वो गट इन्फेक्शन है विद वायरस, उस वजह से हो रहा है डायरिया, है ना, वायरल एंथराइटिस हो रही है। यस मैम, थैंक यू मैम। मैम इसी को प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए एक प्रश्न और आया जो सभी के लिए यहाँ वैलिड होगा, सिंस ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं। तो मैम डज कि ये जो वायरस है पास थ्रू स्पर्म्स आल्सो, so that we should avoid physical contact with our spouses? Very direct question. I think I don't think so, but I have really not looked into it. Surely I'll look at it and then get back to you. But मुझे लगता नहीं है कि ऐसा है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर कोई इन्फेक्टेड है, तो वैसे ही वो इन्फेक्शन दूसरे को दे देगा when you are in close contact. Ma'am, after that period has passed on, so how many days should we consider for that? Because this was very general question I was going through in the social medias, either on Twitter or somewhere. So that's why I thought of asking this question. Look, if both are infected, then they are not going to give infection to each other because both are infected. They can stay close. But if one is infected, other is not. So at least wait for 2 weeks is official. कहते हैं कि virus has been seen at least वो 19 days तक भी, तो मैं कहूँगी 3 weeks would be a good time. Okay, ma'am. There is one more very interesting question. ये भी बहुत लोगों में ये प्रश्न होगा. From Avni Khattar ji, Katkar ji, yeah. Is Avni Katkar around or shall I ask question? His or her question is like कि मुझे 13th अप्रैल को कोविड था और मैं अभी भी मुझे लो ग्रेड 99 फीवर है, जो मुझे भी मैम एक दिन आपको बताया था, और ये बहुत लोगों को हो सकता है, लो ग्रेड फीवर है, और वैक्सीनेशन के लिए कब जाना चाहिए? ये बड़े ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बहुत से ऑडियंस को होंगे के लिए। वैसे तो रिकमेंडेशन जो है उसमें ये कहते हैं कि किसी को नेचुरल इन्फेक्शन अगर हुआ है उसके बाद 4 वीक्स के बाद द पर्सन कैन गो फॉर वैक्सीनेशन। लेकिन अगर लॉजिकली सोचे तो जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो मिनिमम 3 मंथ्स तक लास्ट करती है, राइट? सो आई थिंक एट 3 मंथ्स 1 can 8 to 12 वीक्स के बीच में वैक्सीनेशन ले सकते हैं, और उसके बाद सेकेंड डोज एट इट्स यूजुअल टाइम, राइट? तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर एक ने एक डोज ले लिया फिर कोविड हो गया, तो जो सेकेंड डोज है वो कब लेंगे, जो ड्यू डेट है उस पर लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ तो इट्स लाइक बूस्टर डोज, ओके, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। सो अगेन दैट सेकेंड डोज कैन बी डिलेड बाय 8 weeks to 12 weeks, मतलब 2 महीने से 3 महीने तक डिले कर सकते हैं, तो कैन बी टेकन एट 3 months फ्रॉम द टाइम ऑफ इन्फेक्शन। मैम एक गैप का भी बता दीजिए, ये भी प्रश्न आ रहा है कि कितना अगर गैप में सपोज अभी वैक्सीन में थोड़ी सी दूर दराज लोग जगह पे, ऑल्दो इट्स अ ग्रेट थिंग टॉकिंग अबाउट नेगेटिविटी, इट्स ओके, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगवा जाना ये बहुत आसान नहीं था, और अगर हमें इसको इम्पोर्ट करना होता तो कितना और मुश्किल होता। So we should be thankful to the present government also and our scientists actually, those who worked so hard that we are having our own vaccines. एक क्वेश्चन बड़ा ही रिलेटेड है गांव दूर दराजों से कि मैम कि सपोज फर्स्ट डोज तो उन्हें लग गया, सेकेंड डोज में अगर उस जिस दिन का उनका ड्यू है उस दिन ना लग के कितना और गैप हो सकता है? ये बड़ा ही एक रेलेवेंट सा क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि वो भीड़ भाड़ में जाना नहीं चाह रहे मैम जी। वो वेरी कर रहा है, जो कोवैक्सीन है वो तो 28 डेज है, कोविशील्ड के लिए वो कह रहे हैं कि 6 to 8 weeks, बट जो स्टडीज अवेलेबल हैं वो उनमें ये देखा है कि जो 3 months पे जिनको दिया उनका इम्यूनिटी वाज बेटर इवॉल्व्ड देन दोज हु रिसीव्ड इट एट अ अर्लियर डेट। मतलब जो जिन्होंने पहले लिया, माने कि 1 महीने पे ले लिया या 6 weeks पे ले लिया, तो उनकी इम्यूनिटी जो जनरेट हुई वो कम थी उन लोगों से जिन्होंने 3 months पे लिया। तो यूके में दे हैड गिवन वैक्सीनेशन एट 3 months, राइट? तो
अगर मान लीजिए थोड़ा लेट हो जाता है 1 वीक और 2 वीक्स, 8 वीक्स पे तो वैसे ही होना है, 6 वीक्स पे तो वैसे ही होना है, 6 वीक्स के बाद अगर 7-8 वीक्स हो गए, 9 वीक्स हो गए, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबल डेटा, जो बाहर का डेटा हमारा अवेलेबल है उसके बेसिस पे। तो 3 मंथ्स पे भी लिया है तो देयर वाज नो डिफरेंस इन द इम्यूनोजेनिसिटी। दैट्स ग्रेट मैम, बिकॉज जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनके लिए यही बात है, वो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे हमें कि 1 दिन का डिले हो जाएगा, तो वो तो अपने आप से मैंने बोला, अपने आप से बोल दिया है कि आप चिंता मत करो, 1 हफ्ता तो 1 हफ्ता 10 दिन इधर उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नाउ फ्रॉम योर माउथ ऑल्सो दिस हैज कम, दैट मीन्स थोड़ा लेट होगा, लेकिन वो उतनी परेशानी ना ले, आराम से सबको वैक्सीन लग ही रहा है। अवनी जी, आप शायद आपका प्रश्न आप कह रहे हैं आप सेटिस्फाई नहीं है, प्लीज आस्क डायरेक्टली द क्वेश्चन एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज वेल, बिकॉज यस प्लीज। Yes, ma'am. I'm a scientist. I'm working in Delhi. तो मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे को एक्सर्शनल लग रहा है, अवनी जी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, प्लीज बी लाउडर प्लीज। Hello, ma'am. I'm Dr. Avni Khatkar. I hope I'm audible now. Yes, you are audible. Go ahead. Okay. To introduce myself, I'm a scientist. I'm working in CSIR NPR. Actually, मेरे को कोविड हुआ था 13th अप्रैल को। उसके बाद आई हैव रिकवर्ड, आई हैव नो अदर सिम्टम, बट अब नॉर्मल घर का काम करके भी रात तक मुझे थोड़ा लो ग्रेड फीवर आ जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा कुछ तो घर का, तो फिर क्या करें? इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये है कि नहीं, काम बेशक आप करें, एक्टिविटी तो जारी रखनी है, अपना डाइट अच्छा रखना है, हाइड्रेशन अच्छा रखना है, स्लीप अच्छी लेनी है, ओवर एग्जर्शन नहीं करना है। देयर समथिंग कॉल्ड लॉन्ग कोविड, है ना, कि कोविड से हम रिकवर कर जाते हैं फिर भी कुछ सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। ओके, तो अगर ये होता रहे ऐसा तो आप जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और इलनेस हो रही हो और वो मिस हो जाए, कि लो ग्रेड फीवर हो रहा है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन के बाद हमारी इम्यूनिटी डाउन होती ही होती है। इसीलिए देखा होगा कि पोस्ट वायरल पीरियड में अगर किसी को प्रोलॉन्ग्ड इलनेस हुई है उसके बाद बाकी के इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस एंड अदर्स। सो अगर आपकी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है लो ग्रेड फीवर की, देन यू मस्ट कंसल्ट द फिजिशियन। और अगर एक आध बार बीच में कभी फीवर आ गया, वो भी 99 मतलब 98.4 98.6 एंड 7 इज नॉट टेम्परेचर, वो नॉर्मल है बिल्कुल भी, है ना। 99 100 ऐसे बीच बीच में आ रहा है और लंबे समय पे आ रहा है, देन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल एंड मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर। अदरवाइज 1-2 दिन अगर आ जाता है, डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन जस्ट टेक पैरासिटामोल एंड टेक ऑल प्रिकॉशंस एज सजेस्टेड। Okay, thank you, ma'am. Dr. Dimpi, any comments? Yeah, absolutely. I completely agree with what ma'am has said. And I mean, yes, we need to take necessary precautions, whichever there is there in our hands. At least we can, as ma'am has rightly said, we need to take those precautions and stay calm and stay relaxed and be positive. मैम, मेरा एक प्रश्न था, मेरा बेटा है बड़ा 29 ईयर्स का, उसको कोरोना हुआ था आज 12 दिन है, बुखार कुछ भी नहीं है उसको, बस थोड़ी खांसी होती तो बलगम निकलता है उसका, तो मुझे क्या दवाई देनी चाहिए, कौन सी देनी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, उनको ना कॉफ सिरप दे सकते हैं आप, कोई कॉफ सिरप दे दीजिए अगर खांसी ज्यादा हो रही है, थोड़ी मोड़ी हो रही है और बलगम निकल रहा है तो। दूसरी चीज, स्टीम इनहेलेशन जारी रखें। स्टीम इनहेलेशन करने के बाद जो सिक्रीशंस है नोज में उनको ब्लो करके निकाल दें, क्योंकि जो वायरल इन्फेक्शन होता है, मैं कह रही थी ना, उससे क्या होता है, नोज के उसमें अंदर थोड़ा सा इडीमा हो जाता है, स्वेलिंग होती है, तो जो ओपनिंग्स होते हैं साइनसेस की, हमारे चीक के आसपास, हमारे फॉरहेड पे, नोज पे यहाँ साइनसेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो हमारी वॉइस उससे डिसाइड होती है, वो क्लियर क्लीन होने चाहिए, वो एयर स्पेसेस होते हैं। लेकिन क्योंकि इडीमा होता है, उसकी ओपनिंग बंद जो नोज में होती है वो थोड़ी कम हो जाती है या बंद हो जाती है, तो सिक्रीशंस अंदर ही रह जाते हैं और वो बहुत ही प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस होते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन, उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है, जिसको हम साइनोसाइटिस कह देते हैं। तो साइनोसाइटिस में भी फिर हेडेक होने लगेगा, आईज में पेन होना, और बहुत ज्यादा पोस्ट नेजल ड्रिप होना, कि गर्दन ऐसे करेंगे तो लगेगा गर्दन पीछे कुछ गिरा, खांसने पे जो है वो बहुत सिक्रीशंस आ सकते हैं, तो वो एक वो चीज हो जाती है। तो स्टीम हेल्प
helps in that. और अगर कोई जरूरत पड़ती है, कंटिन्यू रहता है, येलोइश स्पुटम आता रहता है, तो हो सकता है कि कोई एंटीबायोटिक का कोर्स वगैरह देने की जरूरत पड़े। लेकिन थोड़ी बहुत खांसी है तो सिर्फ स्टीम इनहेलेशन ले लें और उससे आराम मिलेगा, और कोई कॉफ सिरप ले सकते हैं अगर जरूरत है। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। सुधा जी बहुत देर से हैंड रेज कर रही है। सुधा जी आप अनम्यूट कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस मैम। नमस्कार मैम। मैम हम पूछना चाहते हैं कि जैसे हम रोज अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, रोज अपने मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, लेकिन रोज अभी कुछ दिनों से लगभग कुछ ना कुछ ऐसी कुछ खराब न्यूज आ जाती है जिससे हमारी फैमिली से या फ्रेंड से, तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो और मतलब उस वजह से मतलब अपनी हेल्थ को लेकर नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज में भी मन नहीं लग रहा है, और उसकी वजह से हम अपना दूसरा काम भी नहीं कर पाते। हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मैम? I think Dr. Dimpy is the right person to give you suggestion. Okay. Thank you Sudha ji for this thing. Yes, you're right कि जैसे कि आप कह रहे हो कि because of the negative news and all of that, definitely it affects our psyche to a great extent, you know. So इसमें मैं यही कहूंगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, कि आपको जो नेगेटिव न्यूज है उसका इनटेक हमें लिमिट करना है, ओके। एंड जो आपका सोशल मीडिया, जो हम लोग most of the time हम social media we tend to use and overuse that, right? So social media को हमें थोड़ा सा we have to limit the usage of social media, Sudha ji. And besides that, जो भी आपका जो भी news channels है, हर बार we keep getting to know about these many cases have been detected, this many people have died, so and all of that, it definitely leaves a very negative impact on your mind, okay? So here हाँ जी मैम हम उन न्यूज को इग्नोर कर सकते हैं जो जिन्हें हम नहीं जानते हो, हम टीवी और न्यूज नहीं देख सकते, हम सोशल मीडिया को भी बंद कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग के जो हम जिन्हें जानते हैं और जिनसे हमने बात की हुई हो और उनकी ऐसी न्यूज आए तो फिर हम कोई भी ऐसा yes, definitely it will affect you. That is very natural, right? Somebody, as I told you in the beginning only, your family member or आपके friend circle में किसी का कुछ COVID related issues हो गया, तो obviously you will be affected. So here I would rather suggest you that in such a scenario you have to talk to the concerned person. If somebody has lost someone, if you are affected, you need to talk, you need to reach out, okay, to someone who you trust, someone who you can confide in, जिनको आप अपने मन की बात उनके सामने रख सकते हो, and you know that you are not going to be judged by that person, okay? Whoever you feel comfortable with, just let that let yourself unburden your emotional pain by connecting with that person, by talking it out. And this talk therapy has a, I would say कि research के द्वारा भी ये पाया गया है कि it's very highly effective. इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा था, physical distancing is there, but socially, emotionally, we need to be connected to each other. So try to be connected with the people around you. Second thing जो है, that is maintaining a journal, okay? Every day just write down your thoughts, negative or positive or whatever it is, you just write down whatever thoughts that come to your mind. So many a times why is this जो आप कह रहे हो, why is the depression or why is this thing is more in the second wave? Because of the fact that हमें जो if we used to lose people before, right, the mourning ceremony होता था, we would meet in the funeral ceremony हो या prayer ceremony हो, we all used to gather together, we would talk, we would interact, we would console each other, है ना? So all of these, because of social distancing or because of physical distancing or isolation, you call it whatever, because of that, this mourning is not happening, okay? आपको just suddenly you get a news that your best friend has no more. So how do you react to it? Your all the grief जो outlet जो है, that is missing somewhere, it is buried deep within you, and it affects you in the form of depression, in the form of anxiety and all of that. That's where it is very important that you connect with someone, you talk to the person, and you and whenever possible, write it down. It is called catharsis in psychology. You will feel relaxed, you will feel calmer from within, okay? And tabhi, whenever you accept it, many a times acute emotions also result because of grief, okay? Something which we call as extreme isolation.
Okay, you don't want to talk to anyone. You want to isolate yourself completely. You feel guilty. Many a times you feel guilty from inside. Many a times you blame yourself and the situation and others. Okay, so ये सारे जो negative spiral of thoughts है, that result because of such situations. So somewhere we need to accept the reality. When you accept it, that's where the healing process will start. ठीक है? So try to connect with people, try to talk it out, and try to engage in all of that I had just mentioned. It is definitely going to calm you. It is going to, help you also to adapt to the situation and help others also, in this present situation. I hope I answered you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. बहुत लोगों के प्रश्नों का उत्तर इसी से मिल गया डॉक्टर दिप्ती, क्योंकि हम सब एकदम से हार्ट एकदम जैसे बड़े लोगों का रिएक्शन होता है कि एकदम हम लोग को लगता है कि हार्ट सिंक हो रहा है इस तरह की न्यूज सुनने में, लेकिन जैसे कि हम लोग थोड़ा सा सोशल काम भी कर रहे होते हैं तो लाइक सुधा इज वेरी यंग वॉलंटियर एंड यंग मेंबर ऑफ शक्ति, और ये युवा में बहुत एक्टिव हैं, तो हेल्प कर रही हैं सेवा भारती के साथ एंड वेरी एक्टिव स्टूडेंट. सो दैट्स वाई वो सोशल मीडिया से दूर रहना तो थोड़ा दिक्कत है, बट आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता है, उमा में हम जानती हैं, और बिकॉज द थिंग इज कि कुछ टाइम के लिए हम सब कुछ ऑफ कर दें एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर दिम्पी, कि 2 दिन हमने बंद कर दिया, या सेलेक्टिव टाइम पे हमें जब देखना है हम तभी देखें. बिकॉज सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है हमारे दोनों पैनलिस्ट एग्री करेंगे और हमारे जितने भी ऑडियंस है कि हम रहेंगे ना सही, तभी हम और जो लोगों को देख पाएंगे. सो और बिकॉज द जस्ट एजेंट्स, क्योंकि अभी हमारे बीच और भी लोग जुड़े हुए हैं. अभी डॉक्टर अंजना, ये हमारी जो अपर्णा नौटियाल, वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ शक्ति, वो कल इतनी परेशान हो रही थी बिकॉज हमारे 2 कलीग्स अभी मतलब हमारे अपने कॉलेज के कलीग्स जो हैं जिनसे रोज उठते बैठते बात करते हैं, वो दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं अभी, एक गंगाराम में, एक दूसरे हॉस्पिटल में है. सो दीज न्यूज कम अप, तो हमें भी चुप नहीं रहना पड़ता. व्हाटएवर द जो भी मैसेज है वो हम लोगों को जो भी हम सुविधा दे सकते हैं वो करें. कल एक यंग कलीग अभी इतने संघर्ष के बाद, बिकॉज गेटिंग इनटू DU is also, or getting this job is very difficult. Young professor who got this recruitment in Jamia, he is no more. Entire DUTA fought और सबने मिलके एक साथ कोशिश करी, प्रयास करी for last 20 days. But as I said, तो अगर सही समय पे वो चीज पकड़ में ना आ जाए तो वी आर लूजिंग आर वेरी यंग, फ्रॉम 35 to 45 का जो एज ग्रुप है, वी आर लूजिंग आर कलीग्स. एंड नाउ लेफ्ट बिहाइंड वी कैन से, मेरी आज एनिवर्सरी है बट मैं इसको इसी तरीके से सेलिब्रेट कर रही हूँ, बिकॉज अब यंग कलीग और उसकी वाइफ और पीछे बच्चा और हमारी वो कलीग ही है अभी. सो इट्स रियली वेरी वेरी पेनफुल. तो वही 99 का ग्रेड फीवर होता है मैम, बट इट्स फाइन. हम जो फीमेल्स हैं वी हैव टू डू आवर वर्क, बिकॉज अभी हमारी हेल्प भी नहीं आ रही है. तो एज उमा मैम सेड, हमें फील करना है कि हम ठीक है, एंड जितना कर सकते हैं वी नीड टू डू, जितना हम लोग पॉसिबल है उतना हम करते रहे काम थोड़ा बहुत. बिकॉज मैं भी बिल्कुल बैठ गई थी बिकॉज ऑफ द न्यूज ऑफ 2. फिर धीरे धीरे अपना लाइक फीवर भी एक दिन आ गया था 99 से ऐसे, और बीच बीच में आता रहता है, आई नो होगा. बट द थिंग इज कि वी नीड टू रिमेन पॉजिटिव एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज दीज थिंग्स वी कैन नॉट अवॉइड, and we have to move on. As I said, we are cooking, so we pass on our energy to our food as well. So वो हम पूरा हमारा परिवार फिर अफेक्ट होता है. तो हम तो अफोर्ड टू, हम बीमार होना भी अफोर्ड बड़ा मुश्किल होता है हम लोग का, फीमेल्स का होना. So few more questions if any. Anjana, you can pick up. Yes ma'am. Ma'am, एक क्वेश्चन है तरुण पांडे का. When D-dimer IL-6 test should be done? D-dimer, IL-6, ferritin, CRP, LDH, ये टेस्ट होते हैं जो सीवियरिटी को डिसाइड करते हैं. अगर ये बहुत ज्यादा एलिवेटेड होते हैं तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, और कुछ मेडिसिन शुरू कर देते हैं ऐसे लोगों को अगर लेवल्स बहुत हाई हैं.
तो वैसे तो देखा जाए अगर इजीली करा सकते हैं तो एक बेसलाइन वैल्यू 5th डे पे करा सकते हैं। और अगर कोई बिल्कुल माइल्ड डिजीज चल रहा है, किसी का फीवर हुआ ठीक हो गया, थोड़ा सा थ्रोट पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ना भी कराएं तो चलेगा, बट अगर कराना है तो 5th डे पे करा सकते हैं। और यूजुअली 5th डे पे करा लें, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो दीज टेस्ट कैन बी रिपीटेड आल्सो बिकॉज दे आर गोइंग टू डिसाइड द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज। लेकिन थोड़ा बहुत सीआरपी है ना, काफी सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका सीआरपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और वो चिंता हो गया मेरा सीआई लेवल बढ़ा हुआ है, किसी ने मुझे कहा ऐसे, तो वो चीज नहीं सोचनी है खुद। थोड़े बहुत बढ़े हुए लेवल्स ओबेसिटी में आ जाते हैं, सीआरपी बढ़ी हुई आ जाती है, डायबिटीज में बढ़ी हुई आ जाती है, हाइपरटेंशन में बढ़ी हुई आ जाती है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ दोस टेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट डूइंग द टेस्ट। तो मैं कहती हूँ कि अगर डॉक्टर कहे, सजेस्ट करे तो कराएं, तो उसपे ज्यादा अच्छा है, उससे क्लैरिटी रहती है। और अगर कराना भी चाहते हैं और नहीं बहुत सेफर साइड में रहना है तो करा लें, 5th डे करा सकते हैं और फिर उसके बाद में रिपीट कर सकते हैं 7th 8th डे पे। और यहाँ पे मैम थर्ड वेव के बारे में क्या कहेंगे? कोरोना की जो थर्ड वेव आने को कह रहे हैं तो डर भी बहुत लगता है, उसके बारे में थोड़ा पता चलिए। नहीं, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी और मैं ऐड करना चाहूंगी और कि जो डर किस चीज से डरते हैं आप? इस चीज से डरते हैं कि हम नहीं रहेंगे, कुछ हो जाएगा हमें, या इस चीज से डरते हैं कि हमारे किसी परिजन को, हमारे जो कोई क्लोज पीपल हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? दो ही चीजों का तो डर होता है ना। तो हम लोगों के नहीं मैम, देश में तो है ना, छोटे बच्चों को होगा और आप छोटे बच्चों का बोल रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि आपको डर से बचना है कि आपसे कोई जाएगा, आपके किसी पर्सन को कुछ हो जाएगा, आपको कुछ हो जाएगा, यही डर एक होता है। ये आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं इस दुनिया में, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस ले लें, बच्चों में निमोनिया होती है, एंड एवरी ईयर सो मेनी चिल्ड्रन आर डाइंग विद निमोनिया, राइट? दे आर डाइंग विद अदर इलनेसेस, जापानीज एंसेफेलाइटिस से या कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो वहां तो कोई चिंता नहीं करता, तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका बिहेवियर बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो जाए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। जो सारी चीजें बताई जा रही हैं कि इन चीजों से आप कोविड से बच सकते हैं, उनको आपको खुद भी करना है, जो आपके अपने लव्ड वंस हैं उनसे भी कराना है, जिनके कांटेक्ट में आप आते हैं कोशिश उनके लिए भी करनी है, तो ही सब लोग बच सकते हैं। लेकिन सोचे बिल्कुल ना कि कुछ होगा तो मैं सामने बैठी हूँ और यहाँ पे कितने सारे लोग हैं उनको कोविड हुआ, पूरे फैमिलीज रिकवर हुए ना, बट दे वर लिटिल मोर केयरफुल। और जहाँ पे इतना हार्ड लक है कि यू आर गोइंग टू लूज अ पर्सन, जो 1% पॉपुलेशन है जो वो हो रही है, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव नो कंट्रोल ओवर डेथ। I mean, nobody in this world has best of the centers, best of the doctors, best of the places. कुछ नहीं कर सकते आप। तो यू जस्ट पुट इन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आप अपना जो आप यू जस्ट थिंक कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ करने के बावजूद भी ये हो गया, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इसके बियॉन्ड में कुछ नहीं कर सकती थी, तो आपको गिल्टी फीलिंग नहीं होगी वो, क्योंकि आप जितना कर सकते थे आपने किया, उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम सब लोगों ने कोशिश वही करनी है कि अपने कैपेसिटी में बिल्कुल, मतलब ये कहना चाहिए कि उसका ऑब्सेशन भी नहीं होना है कि घर में कोई आया और या बच्चे हैं कि निकल गए, अरे तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हें कोरोना हो जाएगा, दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट इज। यू कैन मेक डिफरेंट स्टेटमेंट, fine, it's good to have your wash your hands, so many people are suffering, beta, wash your hands, clean hands are, so वो एक negative positive energy वो भी हो जाती है, the way you are putting your words to your family members, to your children, है ना, वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से पॉजिटिविटी लेके चलनी है, बिल्कुल मत सोचिए थर्ड वेव किसने देखी है, क्या पता ना आए, क्या पता आए, who in this world can predict this। अगर इतना ही होता तो सेकेंड वेव ना किसी ने क्लियरली कर दिया होता कि भाई इन चीजों का इंतजाम कर लो, ऐसा होने वाला है। तो जस्ट डोंट थिंक, लेट दैट बी टू द साइंटिस्ट टू डिसाइड, एंड द पॉलिटिकल क्लास एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द लॉजिस्टिक्स की तैयारी करनी है। भाई आ गया तो क्या होगा, ना आए बहुत अच्छा है, हम जानते हैं नहीं आएगा, बट आ गया तो क्या होगा। जब बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड होंगे तो वो साइंटिस्ट उस कम्युनिटी, उस क्लास के लिए छोड़ देनी है वो चीजें, हमें नहीं सोचनी है वो चीजें कि भाई थर्ड आ जाएगी तो क्या होगा। ठीक है सुमन जी? बिल्कुल मैम, जिस तरीके से अभी मैम, सुमन दीदी प्लीज, अंजना प्लीज गो। मैम एक विनीता मिश्रा जी का क्वेश्चन है,
she's saying that they had a late marriage. They're 44 now, and they're planning for a family. So can they go for vaccination, both husband and wife? Yes, they can go for vaccination. और अभी जो स्टडीज आए हैं, कुछ डेटा आ गया है जो प्रेग्नेंट लेडीज के आया है, तो उसमें ये भी देखा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो बेबी में ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर हो जाता है, मतलब बेबी में भी चले जाते हैं, है ना, और वो मिल्क से भी बेबी में ब्रेस्ट फीडिंग से चले जाते हैं, तो दे आर प्रोटेक्टिव, मतलब बच्चे को भी कुछ हफ्तों कुछ महीनों बचा सकते हैं, so they must go ahead with the vaccination. Okay, ma'am, I have one question. In 2015, I had postpartum cardiomyopathy after I gave birth to my daughter. She is now 6 years old. So can I go for vaccination? Yes, you I'm must. absolutely normal because my echo is normal. You must. In fact, it was told कि जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको तो प्रायोरिटी दी गई थी वैक्सीनेशन में, क्योंकि उनमें जो है कोविड अगर हो जाता है, किसी को आपने देखा होगा कि कार्डियोमायोपैथी होगी तो इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, Yes, तो ma'am. थोड़ा सा भी एक्सर्शन, थोड़ा सा भी इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट की फीवर भी हो जाना, उससे कार्डियक फेलियर हो जाता है, फेलियर में चला जाता है पर्सन, क्योंकि हार्ट उतना ब्लड पंप ही नहीं कर पाता जिसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए तो और भी जरूरी हो जाता है वैक्सीनेशन कराना की प्रॉब्लम ज्यादा ना So, ma'am, before that, I should consult a cardiologist then, you or can should I go directly? you can directly go, क्योंकि आजकल तो इको स्प्रिंग भी अगर चल रही है तो भी कह रहे हैं कि यू कैन गेट योर वैक्सीनेशन डन, बट टू योर सेटिस्फैक्शन यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर कार्डियोलॉजिस्ट, बट यू आर, आई मीन यू मस्ट टेक वैक्सीन. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Dippy, ma'am, I have one question. I have a friend, and her sister. She was, because of all this, events and all, she has gone to acute depression, and so much so that she even tried to commit suicide. So for that, people who can't take things, they can't accept whatever going on in their life or around the world. What all you can suggest? Okay, so here in, as you said that she has been suffering from depression to the extent of trying to commit suicide. Somewhere I feel that it is very important that she needs help, in the sense that she needs to visit the mental health practitioner, clinical psychologist or a psychiatrist, and accordingly take medication for the same. Here जो भी मैंने आपको जो steps मैंने बताए थे, meditation, relaxation and all that can add on to the thing, but then ultimately therapy and medication is the most important thing at this stage. I think it's better not to delay, and it's better that she consults a psychologist, clinical psychologist or a psychiatrist, and go ahead with it. And Okay. besides that जो मैंने अभी आपको बताया था, relaxation, breathing exercises and all of that will continue, but then most important is now, as of now, it's medication and counseling and psychotherapy. And ma'am, some people, in this period of time, even after they are, doing breathing exercises and mindfulness, I mean, they're aware of everything around us. But somewhere there is so much of anxiety, and some people are having blood pressure because of that. There is no history, but because of all these situations, they are getting high blood pressure, and some people are there who are getting low blood pressure. So, what all the different breathing exercises can you suggest? Is there any exercise that will help to normalize the blood pressure? So here, as you said, regarding the blood pressure thing, yes, as I said, because of the stress only, the physiological responses of high blood pressure, peptic ulcers, and all of those, what do you call it, physiological symptoms are exhibited. That's where it is important, to maintain, your inner calm. And how can you do that? As I said, breathing exercises, yoga, meditation play a very important role. There are certain applications, apps also, which can be installed, like there is Headspace, there is Calm, CALM. Then there is something called guided imagery, guided meditation, Vipassana meditation. Okay, so as ma'am Uma ma'am also has answered to someone that when she's asked about third wave,
right? So here, rather than feeling anxious, thinking about the future, which is but natural for everyone at this point of time, मैं यही suggest करूंगी, जैसे मैम ने भी कहा कि अभी हमें we need to be mindful of the present moment. And being mindful of the present is, how can you do that? By simply, even if you're washing the utensils, even if you're cooking, just keep a focus on your breath. You're breathing in and breathing out. The moment you focus on your breath, you get your attention on the breath, immediately you will observe that all your anxiety, all your thoughts about the future or about the past, everything will disappear. So this is the easiest way, I would say. Even if you're driving, you can, just get your attention and focus on your breath. That is one way of being mindful. I'm just saying, what you can do on a day-to-day life basis. Second thing is that usual breathing exercises like Anulom Vilom will help you. Okay. Then you have what you call it as, you can just breathe in to the count of 6 and then hold your breath to the count of 5. And then again, very slowly you breathe out to the count of 10. इसको अगर हम around 10 rounds करें practice, that will also give you a lot of calmness in your head. Okay. Besides that, your usual जो मैंने अभी आपको बताया meditation and all guided image, YouTube में काफी सारे links है, आप just check कीजिए guided meditation, you will come across a lot of them. So 5 minutes to 10 minutes morning or before going off to sleep, the people who are suffering from insomnia, there's a term called as of now COVID. What did I read somewhere? Where did I read? COVID-somnia. Something where, you're not getting sleep because of the fear of COVID. Whether I will contract COVID, as ma'am also said, whether some family members may get COVID, all that anxiety related, thoughts are there. So here, these meditations, these techniques will help you to a very great extent. So एक तो चीज है being aware of it. Second thing is practicing it. So we need to practice it. So when you practice it deliberately, you will see the changes happen. And it takes 21 days to form a habit. So let us make it this thing, let me practice it for 21 days. You will see the difference altogether. Thank you so much. Thank you so much, Dilpi ma'am and Uma ma'am. Now I would like to invite Dr. Smita Sundaram ma'am, Organizing Secretary Indraprastha, to say a few words. Ma'am, please. थैंक यू अंजना जी। सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा मॉडरेट किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं डिम्पी मैम को धन्यवाद करती हूँ कि अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी अभी सारे लोग एंजाइटी, प्रेशर, हम लोग हमेशा शक्ति में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है महिलाओं से रिलेटेड, रूबी मैम और हमारी सारी टीम उमा मैम के समक्ष हम लोग रखते हैं और इस पे डिस्कस करते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सके। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ डिम्पी मैम को कि आपने इतना अच्छा सुझाव दिया, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का, ग्रेटिट्यूड थेरेपी, टॉक थेरेपी, प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, कैथारसिस, विपस्सना, इतना अच्छा मेडिटेशन बताया है। मेरे ख्याल से जितने लोग प्रेजेंट हैं जरूर हम लोग इसको गूगल भी करें, सीख सकते हैं। डिम्पी मैम आप अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दें, जिनको भी आगे फर्दर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है फियर में है, तो मेरे ख्याल से डिम्पी मैम जरूर सॉल्व करेंगे, हम लोग रहेंगे। और एक चीज और मैं कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ही नाम शक्ति है, शक्ति मीन्स पावर। उमा मैम हमेशा कहती है कि ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस दुर्गा। यहाँ पावर ऑफ पॉजिटिविटी, पावर ऑफ फेथ, पावर ऑफ यूनिटी, सारा शक्ति शब्द में ही निहित है। तो मेरे ख्याल से अगर हम सारे शक्ति एक दूसरे से इसी तरह से जुड़ कर रहे तो थर्ड वेव को आने ही नहीं देंगे। एक चीज मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहती हूँ कि उमा जी, हम लोग 27 मार्च को एक कोविड फ्री होली मिलन कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज किए थे वर्चुअल, और उमा मैम उस दिन हम लोग को बहुत ही बता रही थी, समझा रही थी, हम लोग गाना गा रहे थे होली से रिलेटेड कि सेकेंड वेव आने वाला है, आप लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि हम लोग थर्ड वेव का बात कर रहे हैं और आप लोग से आज इतना हम लोग ने एम्पावर्ड फील हो रहे, इतना नॉलेज हम लोग को मिला। उस दिन 27 मार्च अगर कितने भी शक्ति के मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो हम लोग को डायरी में नोट करना चाहिए। और हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा, जिसके मिस्टेक की वजह से हैंड को सैनिटाइज नहीं किया, मास्क नहीं लगाया। और मैं पॉजिटिव हुई, यहाँ पे सारे लोग, सुमन जी हैं, रूबी जी हैं, और भी मेरी शक्ति की बहुत सारी बहनें हैं जो पॉजिटिव हुई, इन्फेक्ट हुई और उनके फैमिली में भी उससे ट्रांसमिट हुआ।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आज संकल्प लेना है हम लोगों को कि थर्ड वेव हम अपनी शक्ति के यूनिटी के माध्यम से इस तरह का कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे और इस देश में थर्ड वेव आने नहीं देंगे। हम लोग हमेशा सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, 2 गज दूरी, जो भी आप लोग का सजेशंस है उसको जरूर जरूर दिल से फॉलो करेंगे और आसपास जितने लोग हैं उनको स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि प्लीज आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए। हम लोग को आगे थर्ड वेव आने ही नहीं देना है। भारत आज ही सेकंड वेव ही लास्ट वेव है। अब कोविड फ्री भारत का सेलिब्रेशन हम लोग को करना है। हम सबसे अनुरोध ये मैं आप लोगों से करती हूँ कि हम लोग को इस जागरूकता को इसी मोटिवेशन के साथ, उमा जी और डिम्पी जी अब हम लोग के साथ जुड़ गई है तो आपका हमेशा मार्गदर्शन चाहिए होगा। इसी जागरूकता के साथ यहाँ पे बहुत सारे युवा कार्यकर्ता हैं, आप लोग से भी मैं आग्रह कर रही हूँ कि इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए। उमा जी हमेशा मुझे सजेस्ट करती है हम लोगों को कि 10 लोग का भी अगर कुछ क्वेश्चन है, गांव में है, वो अंडर प्रिविलेज है, मैं उनकी कंपैशन को समझ सकती हूँ। इतनी बड़ी डॉक्टर इतनी व्यस्त लाइफ में भी जो वो अपना सजेशन हम लोगों को अपनी जो बात वो बताती है कि 5 लोग भी आपको मिलते हैं स्मिता जी, जरूर उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करा दीजिए। मैं 1 to 1 मिलूंगी और उनके मन का जो फियर है या वो उनका जो मेडिकेशन है उसको अप्रोप्रिएट कर पाऊंगी। तो ये हमारी शक्ति है। इस तरह से शक्ति को हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर रखना है अभी समय जो है, और जरूर मेरे ख्याल से हम लोग ही नहीं हमारा पूरा देश थर्ड वेव आने नहीं देंगे। ऐसे संकल्प के साथ उमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं सारे लोग इस संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करेंगे कि थर्ड वेव आने नहीं देना है। इस बार जो गलती लापरवाही हुई है अब वो आगे नहीं, हमारे देश में किसी को भी हम लोग से इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम लोग बिल्कुल कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और दूसरे को भी पॉजिटिव करेंगे। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही कहा स्मिता जी, ये पॉजिटिविटी आपसे ही मुझे मिलती है और ये शक्ति मिलती है कि हम इस तरह से आगे मिलके ये काम करते रहें। मैं जरूर ये ऐड ऑन करूंगी कि वायरस तो नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ हम लोग ये आह्वान जो ये आपका है, बिकॉज वी आर इंटेलेक्चुअल बॉडी और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर उमा कुमार हम सब हमारा परिवार ठीक से उभर पा रहा है, कुछ उभर रहे हैं और कुछ उभर के निकले हैं। विद प्रॉपर गाइडेंस ये चीजें कम हो सकेंगी, तो ये हम लोग का बिल्कुल है। एंड मुझे याद है हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे जब मैम ने कहा सेकेंड वेव आएगा, और कोई भी राष्ट्र जितने उसकी संख्या है उतने बेड्स बना के नहीं रखता, इतनी फैसिलिटी बना के नहीं रखता, वो ये सोच के नहीं रख चलता कि ये पॉपुलेशन इतनी सारी बीमार होगी, दैट टू इन ए कंट्री जिसको यंग पॉपुलेशन यंग कंट्री कहा जाता है। तो इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट, स्टिल वी आर हैविंग आवर ओन वैक्सीन। हम तो इसको पॉजिटिव ग्रुप है, इसको पॉजिटिविटी के साथ ही लेके चलेंगे और आगे भी यही प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वाला वायरस जो है WHO ने भी इसको माना है कि सांस के थ्रू आया है। तो कोविड जो है वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर शायद रखा भी होगा हमने या नहीं भी रखा होगा, या हम आश्वस्त हो गए थे, लेकिन हम सब अफेक्ट हुए। तो जो अफेक्ट हुए हैं वो हम जानते हैं कि कैसे हमने अपने स्पाउसेस, बिकॉज दिस टाइम वी हैव ऑब्जर्व दैट द यंगर, बिकॉज स्मिता के हस्बैंड भी ब्यूरोक्रेट हैं, तो जो क्योंकि उनकी ऐसी सर्विस है कि वो घर नहीं बैठ सकते, ऐसी जॉब है घर नहीं बैठ सकते, बट स्टिल शायद हमने उनको अफेक्ट करा या इस तरह की चीजें हुई हैं। सो लेट अस टेक अ प्लेज कि कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितनी अवेयरनेस करें और प्रयास करें, एटलीस्ट हमसे ही शुरू होता है, स्वयं से ही शुरू होता है। ओवर टू यू अंजना। बिल्कुल सही कहा मैम। स्मिता मैम थैंक यू सो मच। रूबी मैम थैंक यू सो मच। कल रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती थी, तो उनका एक बड़ा फेमस कोट है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। लेट मी नॉट प्रे टू बी शेल्टर्ड फ्रॉम डेंजर्स बट टू बी फियरलेस इन फेसिंग देम। तो आई होप हम सब मिलके शक्ति के साथ अब जितने भी संकट है उनको जूझे, उन पे पार पाए और एक फियरलेस होकर समाज में आशावादी किरण फैलाएं।
तो कल मदर्स डे भी है, तो मैं सभी को हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूंगी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। विद दिस आई वुड लाइक टू इनवाइट दीक्षा तिवारी, प्रेसिडेंट NSS, फॉर कल्याण मंत्र। शी इज फ्रॉम देशबंधु कॉलेज, NSS प्रेसिडेंट। थैंक यू मैम। हम सभी अपनी हाथ जोड़ के आंख बंद करके कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। Thank you, Diksha. Thank you so much, everyone.